गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमने SME IPO का एक रोड शो रखा हुआ है जिसके आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाओ और आपके अगर कुछ भी सवाल है कंपनी के प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग तो वो भी आप समझ पाओ, और आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो वो सब चीज़ समझने के लिए आज हमने डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन रखा है। मिस्टर राहुल बत्रा जी, कंपनी के डायरेक्टर, प्रेजेंटेशन करेंगे आपके साथ और आपको पूरी सब चीज़ें बताएंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के क्या प्रोस्पेक्ट है, कंपनी क्यों IPO ला रही है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पे डालते रहिएगा। तो एंड ऑफ द सेशन हम वो सब क्वेश्चंस को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो let's welcome Mr. Rahul Batra to give us a presentation. Rahul ji, please. Yeah, Pratik ji, how are you? कैसे हैं? Yes, sir, I am fine. How are you? That's good, perfectly fine. Okay, so investors are waiting for your presentation. Yeah, Pratik ji. So, being at our office, and along with me, Mr. Gupta is there, who is our financial advisor, who's taking care of this lead issue thing. And to start with, I'll just brief you about this company. It's a 35-year-old company and started by my father, Mr. Vijay Batra. He has a pharmaceutical experience for more than 35 years. He himself is a pharmacist, having a good experience of establishing more than 8 plants now. So started a very small journey all about himself, and then gradually developing into 3-4 units. So this 2008 rather, we started oncology manufacturing, and that was a year where if you see, like, when most of the people in north side, they were entering into the pharmaceutical, seeing the profits and all. So we decided, and me and my brother, then that was the year when we joined. So we decided that let's just get off from the generic business and let's just get into super specialty. So 2008, we just had a small unit for the oncology drug where we have found the technocrats, and fortunately we found the technology to manufacture the cytotoxic drugs, the cancer drugs. And these drugs are only technology-based drugs and can be manufactured with a very high profile of you can say technology, and too many standards have to be maintained so that nothing should be anything should not be go out of the premises. So in 2014, we thought, like, let's just expand and just go in a big time, and let's just scatter the world, and let's just get into the regulated and mainly the regulated, semi-regulated market for the oncology drugs. So 2014 August, we acquired this SIC unit known as Beta Drug Private Limited, and it took us 8 months to establish this unit. And in 2015, we started our general production for this particular unit. And 2015, we did a top line of 24 crores with a PAT of 1.5 crore. And after that year particularly, we in the very first year only, we achieved our break even. And next year, last year rather, 2016-17, we did a top line of 41.47, and where the PAT is 5.03. So the total idea about the PAT is like around 12% of the total top line. What we are doing in Beta Drugs is, like, our business is basically divided in 3 verticals. First is our own sales, brand and marketing, where we had a team professionals of 35 people who are taking care of this sales and marketing pan India. राहुल जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, प्लीज थोड़ा हिंदी में भी रखिए, तो देयर आर लॉट ऑफ हिंदी पीपल। सो अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ठीक है प्रदीप जी। हाँ, ठीक है। बीटा बेसिकली वी स्टार्टेड इन 2014 अगस्त, हमने एक यूनिट को ओवरटेक किया था। तो वो यूनिट जो हमने ओवरटेक किया, तो वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ दैट यूनिट। हमने उसको प्रोडक्शन वगैरह के लिए हमने उसको 8 महीने लगा हमें तैयार करने में। एंड 2015 में हमने उसका प्रोडक्शन शुरू किया, एंड 2015-16 में हमारा ब्रेक इवन फर्स्ट ईयर में ही उस यूनिट का आ गया था। एंड वी डिड अ टॉप लाइन ऑफ 24 करोड़ हमने उस साल में किया। एंड 2015-16-17 में हमने किया अराउंड 41 करोड़।
सो विद टॉप लाइन विद पैट ऑफ अपना हमारा 5 करोड़ का पैट था, और उसका जो मतलब जो हमारा पैट परसेंटेज है दैट इज अराउंड 12%। अभी जो हम बीटा ड्रग्स में हमारा वर्टिकल जो है, ये बेसिकली 3 वर्टिकल में डिवाइड है जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है। पहला पोर्टफोलियो है जो हमारा खुद का सेल्स ब्रांड एंड मार्केटिंग है। इसमें मेजरली क्या है कि हमारा वी हैव अ टीम ऑफ 35 प्रोफेशनल्स ऑन फ्रॉम ऑल ऑन्कोलॉजी बैकग्राउंड, जिन्होंने किसी ने जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, नेटको, फाइजर, सन इन कंपनियों में काम किया। तो वी हायर्ड दो प्रोफेशनल्स एंड उनको हमने अपने साथ रखा एंड दे आर वर्किंग विद अस सिंस लास्ट 9 years नाउ। What they are doing, we are in our own brand and marketing, we are going to all the doctors, हम सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर्स को खुद केटर करते हैं। There are lot many activities which we are doing, हम बहुत कुछ मतलब पेशेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, CMEs जो पेशेंट्स के साथ होता है, जो चैरिटेबल बड़ी सारी चीजें हम साथ में करते हैं टू मेक अ ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट इन द मार्केट। टुडे आज विद गॉड्स ग्रेस हमारा जो ब्रांड है काफी अच्छा एस्टेब्लिश हो चुका है, वेयर हमने आप कोई भी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स इंडिया के नाम लें, जो आपका जैसे अपोलो है, मैक्स है, लीलावती है, नानावती है, गुजरात के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे हॉस्पिटल्स में वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स ऑन आवर ओन ब्रांड नेम्स। सो विद गॉड्स विद वन मोर थिंग इज दैट वी हैव हम जो है इंडिया के टॉप 15 कंपनियों में है एज पर आवर कन्वेंशनल ड्रग, जो पुराना कन्वेंशनल ड्रग कीमोथेरेपी का है वो जो हम प्रमोट करते हैं। एंड हम लोग काफी बड़ी कंपनियों से काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड हमारा जो इसमें टीम है, एक मार्केटिंग हेड है जो स्ट्रेटेजीज वगैरह हम लेआउट करते हैं वो बनाता है, जिसके अंदर से वो बेसिकली क्या करता है कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं डॉक्टर के ऊपर, साइंटिफिक प्रमोशन कैसे करना है, कौन सा CME एक्टिविटी करना है, पेशेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहाँ कहाँ करने हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पूरे महीने में 5-6 हो जाते हैं, जिसमें हम आसपास के डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, देन अब कंपनी की प्रेजेंटेशन होता है एंड पेशेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं कि पेशेंट को कैसा अवेयरनेस किया जाए। इस तरीके से कंपनी का ब्रांड क्रिएट किया जाता है। अभी हमने चेन्नई में वी हैव जस्ट एक अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट है, वी डोनेटेड 1 बस फॉर पेशेंट्स, एक बस पेशेंट्स के लिए डोनेट की है। ऐसे ही हम डॉक्टर्स को जब जाते हैं प्रमोट करने तो हम उनको बोलते हैं कि जो कैंसर पेशेंट, जैसे कि हमें पता है कोई कैंसर से अगर कोई बीमार होता है तो कीमोथेरेपी अफोर्ड करना हर एक की बस की बात नहीं है। तो हम डॉक्टर्स को जाके हमने अपना यू कैन से हमने एक अपना एवेन्यू खोला हुआ है, जो हम डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि कोई भी पेशेंट जो नॉन अफोर्डेबल हो उसको हम सारी कीमो साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ दिस फ्री चैरिटी फॉर मेनी ऑफ द पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड दैट टू ओनली डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। तो दिस इज आवर फर्स्ट वर्टिकल। द सेकंड वर्टिकल इज जो हमारा OEMs है, जो हम अपना क्या कहते हैं, वी डू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वी आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, जिसके अंदर हम कंपनी लाइक RPG, कैडिला, टोरेंट, जुवेंटस, फिनिशिया, इंटास, हेट्रो, बायोकेम, जाइडस, एल्केम, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड ग्लेनमार्क के साथ हमारा टाई अप हो गया। तो ऑल दिस कंपनी दे बेसिक ऑन्कोलॉजी ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अस मेजरली। हम क्या करते हैं कि हम इसमें भी OEMs में हमारा इट्स नॉट लाइक अ जनरल ड्रग जहाँ पे मतलब मार्जिन आर ओनली 5 or 10%। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल ड्रग, जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट शीट्स शेयर नहीं करते इन OEMs के साथ। वी जस्ट गिव आवर ट्रांसफर प्राइस कि ये हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा, तो दे एग्री एंड देन दिस इज हाउ वी आर डूइंग द बिजनेस। देन थर्ड आवर रैशनल जो थर्ड वर्टिकल है दैट इज आवर एक्सपोर्ट। हमारा जो पिछले साल का एक्सपोर्ट रेवेन्यू था दैट वाज ओनली 1%। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू ऑफ 7 to 8% एंड आवर टारगेट फॉर 19-20 टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट रेवेन्यू टू 40 to 50%। जितना भी अभी हमारा कैपेक्स है, जो इशू का जो हमने सब्जेक्ट ऑफ इशू डाला हुआ है, उससे हमारा टोटल यूटिलाइजेशन हमारा होता है 45 to 50%। सो विद दिस कैपेक्स, विद दिस यूटिलाइजेशन, ये जो हमारा कैपेसिटी है, वी कैन डू अ टर्नओवर ऑफ 200 to 250 crore। वी डोंट नीड फर्दर एनी कैपिटलाइजेशन, any capital investment for in the terms of plant and machinery, जो post IPO के बाद होता है। Then what we are different with other companies is हमारा बेसिकली वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। हमारा एक F&D का टीम है जिसको कहते हैं फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो हमारा दूसरा सेटअप है उसके अंदर हमने बनाया है, जहाँ पे हम नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाते हैं एंड वी डेवलप दोज मॉलिक्यूल्स इन हाउस। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है एल्बुमिन बाउंड विद पेक्लिडेक्स, जो हमारी प्रेजेंटेशन में है।
अब उस प्रोडक्ट की खासियत है कि हमने एक नॉर्मल पैकेट एक्सेल को एक हमने एल्बुमिन बाउंस बना के उसको एक टारगेटेड थेरेपी बना दिया है। उसमें हम वी आर द थर्ड कंपनी इन इंडिया हु इज मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। इसके लिए हमने अब सेपरेट अपना कैपेक्स इंट्रोड्यूस किया, लगाया, जिसके अंदर हमने वी हैव इन्वेस्टेड ऑन 1.5 to 2 crore रुपीस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू गेट इनटू कमर्शियलाइजेशन। इस प्रोडक्ट का जो कमर्शियल है हमारा नवंबर में शुरू हो जाएगा। दिस मंथ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग द ट्रायल बैचेस एंड वी आर होपिंग वी हैव ऑलरेडी गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारा जाइडस, टोरेंट, ग्लेनमार्क और उसका एल्केम के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसमें वी हैव टू सप्लाई देम गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एवरी मंथ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जो हम इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू, दैट इज अराउंड 1.5 to 2 crore रेवेन्यू एवरी मंथ। देन अनदर प्रोडक्ट इज इन पाइपलाइन, जो हमारा एक और है, दैट इज कॉल्ड ल्यूप्रोलाइट डिपो, विच जैसे वो वाला प्रोडक्ट था, उस वाले प्रोडक्ट में बेसिकली अभी तक there are only 2 more companies who are manufacturing this product. We will be the third company. We are the third company who is going to manufacture this. Then जो हमारा नेक्स्ट फोकस प्रोडक्ट है, दैट इज ल्यूप्रोलाइट एसीटेट, जो प्रोस्टेट कैंसर में काम आता है। इसका इट्स अ डिपो टेक्नोलॉजी। डिपो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यू गिव इंजेक्शन वंस, उसके बाद वो पूरा महीना वो इंजेक्शन अपने आप एब्जॉर्ब करता रहता है वेन्स के थ्रू। सो ये टेक्नोलॉजी भी हमने इन हाउस डेवलप कर ली है एंड विल बी द थर्ड कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ आवर कोर स्ट्रेंथ लाइज कि हमारी एफ&डी, हमारे टेक्नोक्रेट्स की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हमारा फोकस एरिया रहता है कि हम नए से नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए, नए से नए प्रोडक्ट डेवलप करें एंड उनको एक एमएनसी का जो एक रिसर्च मॉलिक्यूल है उसके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करके हम इसको कमर्शियल में लेके। आवर टारगेट, आवर फ्यूचर एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जो फ्यूचर है हमारा, जो विजन क्या है, विजन इज कि हमें इस सब्जेक्ट ऑफ इशू से अपना पोस्ट आईपीओ वी आर गोइंग फॉर ईयू जीएमपी सर्टिफिकेशन, जहां पे हमारा टोटल फोकस होगा यूरोपियन मार्केट, साउथ अमेरिकन, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये हमारा मेजर फोकस होगा। देन साउथ ईस्ट एशिया हमारा काफी बड़ा फोकस होगा, जिसमें हमारा थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर, ये वाली कंट्रीज में हमारा मेजर फोकस है। देन इन अफ्रीका वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस ईयर। अभी हमारा इथियोपिया क्लियर हो चुका है। देन वी हैव गॉट अ प्री ऑडिट, हमने साउथ अफ्रीका का ऑडिट प्री ऑडिट करवा लिया है, कोलंबिया का प्री ऑडिट करवा लिया है। जस्ट नाउ द सम अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लान एंड देन वी कैन फाइनली वी आर प्लानिंग के हम लोग बाय 2018 मार्च और जून तक हम लोग ये सारी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट and this will increase, of course, this will increase our PAT contribution also, because the margins which are prevailing in the market outside India is much more higher that we anticipate in India. So of course the top line will also increase and the PAT size will also increase. So our target for 2019-20 is we can generate a revenue of around 90 to 100 crores with a PAT of 16 crores. So this 16 to 20 crores. So this is what whole idea about the company, and any questions you can of course ask, please. ओके, सो राहुल जी, प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करना है या आपने पूरा उसको कवर कर लिया है? मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इसके अंदर प्रतीक जी कवर कर लिए हैं। ओके, के बारे में, हमारा की क्लाइंटेज के बारे में, हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में, हमारा कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, हमारा अभी सो एक बार हम गो थ्रू कर ले प्रेजेंटेशन को वन बाय वन। सो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। यस, बिल्कुल कर लेते हैं सर। ओके, सो अभी हम अबाउट द कंपनी पे है। हाँ जी, हाँ, सो आप थोड़ा अगर हाँ जी, तो अबाउट द कंपनी का जो है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2005 as it was a sick unit, so we overtook this unit on in the year 2014 August, एंड उसके बाद हमने ये बनाया पूरा इस यूनिट को कॉम्प्रिहेंडेड एक कैंसर यूनिट में कन्वर्ट किया, जिसके अंदर वी केम अप द फैसिलिटीज ऑफ ऑल द सेक्शंस, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, लाइफोलाइज इंजेक्टेबल, ऑल लिक्विड, सब कुछ इसका हमने एक दैट वाज अ टोटल कंक्रीट यूनिट फॉर द कैंसर ड्रग्स। देन initially the production started with a portfolio of 35 products and it increased gradually, and हमने 50-70 प्रोडक्ट्स तक अब तक मार्केट में कमर्शियल लेके आ चुके हैं।
देन वही वर्टिकल मैंने आपको बताया, 3 वर्टिकल हैं, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. So ये हमारे 3 वर्टिकल हैं which I have discussed in details. The total number of customers as compared to OEMs and our own marketing is concerned around 73, because it's not a big like a chemist based sales. Then the number of product registered is now it's somewhere around say 65 to 70 products हमारे registered हैं. Then total number of employees in Beta Drugs are 196, PAT is 520, and the total top line we did in 2016-17 is 4165. Then our promoters, Mr. Vijay Batra, I already discussed in detail with that why how he got into the pharmaceutical business. उनका कैसा experience था. उन्होंने पहला यूनिट केवी लेबोरेटरीज के नाम से लगाया था. Then he closed that unit. Then उन्होंने एडमेक के नाम से लगाया था. Then he gave it to my uncle. Then he started Adlay. Adlay से फिर then the focus shifted towards only the oncology. Then we purchased one unit called Beta Drugs. Milestone is that हमने 2014 में ये यूनिट टेक ओवर किया. हमने 2015 में ही इसके अंदर हमने WHO GMP सर्टिफिकेट लेके आ गए थे. एंड 2000 लास्ट ईयर हमने कीनिया का GMP सर्टिफिकेट वी हैव ऑलरेडी अचीव. अलोंग विद हमने इथियोपिया का ऑडिट कराया, कोलंबिया का ऑडिट कराया, साउथ अफ्रीका का ऑडिट कराया. इवन वी हैव गॉट अ फ्रैंको अफ्रीकन का अप्रूवल हमारे पास आया 2016-17 में. एंड दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड द प्रॉस्पेक्टस विद NSE. अदर मैनेजमेंट इफ वी टॉक अबाउट, I'm Rahul Batra. I've done my post graduation with from the University of Strathclyde. That's like the top 5 business schools of UK. And then Varun is my brother. I'm taking care of sales, marketing plus financials, and Varun is taking care of export sales and the production part. He has done his graduation from Canada. Then there's one Mr. Balwant. He's associated with us since last 25 years. And ये सारा total he's taking care of all the factory as a GM, and he's one of the director also. Then Mrs. Neeraj Batra is our mom. She comes off and on to see how the things are working. Then our focus, as I discussed already, that our focus is towards our own marketing. We have recently developed this AB Packley, which we have already discussed in details how AB Packley works. Then we are the third company in India who has introduced this product. Then we have a good portfolio, brands like imatinib for the blood cancers, for leukemia. Then we have solid tumors for lung cancer, gefitinib, then all adjuvant. Then we have all the sections for all the prostate cancers. Then we have for head and neck, esophagus, breast, all segments we are covering in entire India. Then we have one more product called fludarabin, which is like a key product for a BMT transplant. If the person is not not getting to the chemotherapy easily, then there is a thing called bone marrow transplant. We are for that. This product is a very important product, which one of very few companies in India are manufacturing this. So we are already in a production manufacturing for this particular product. Then this leuprolide, we have already developed this product. We are in the process of developing this product. Right now, we are marketing this product. We are getting it outsourced from someone. So now we have developed the in-house technology to manufacture and to market this product for particular prostate cancer. This product has got a huge scope. That's why we are developing this product in-house. And almost all the development is done. Only the certain parameters to be identified which are going on. जो हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं इसको एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ इसको मैच करके स्टैंडर्ड्स, देन विल कम इनटू हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन में आएंगे. Then next slide if we come, we have already discussed हमारे पास प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मतलब टैबलेट कैप्सूल वगैरह. ये टैबलेट कैप्सूल इंजेक्टेबल एंड इंजेक्टेबल में लिक्विड एंड लाइफोलाइज इंजेक्टेबल्स both. Then we have a production capacity for tablet to 50 million and then 300 lakhs for tablets, which we are increasing from this. Even all these comprise of only 50% utilization of current capacity, and with the issue and investment of further into the machinery and upgradation, our capacity will further reduce to 45%, 45 to 47% capacity utilization. So we are so we have a lot of room to play, especially with in case of capacity is concerned. We can do large volumes without any further involvement of capex. Then our plant Beta Drugs is located in Himachal Pradesh.
That's called Nagpur and Nalagarh district. The site is licensed by FDA, state controlled drug and department, and they have visited. Even the site is WHO approved. The facility, it is already been this one like audited by South Africa and Colombia. So the facility as such is very good. It's a five-star facility, and you should come and see like what manufacturing, how the technology products we are maintaining. Then 2000, then comes to our geographical presence. Here you will be seeing that most of the presence is in western part, as our main distributor lies in Indore. That is called All India Super Distributor, जो हमारा इंदौर में रहता है. हमारा मेन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट जो हमारा जितना मटेरियल बत्ती में बनता है वो सारा इंदौर जाता है. इंदौर से पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है. सो दैट इज वाई ये आपको JNK, राजस्थान, ये आंध्रा, कर्नाटका, ये आपको उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट, आपको नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट पूरा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज अब जो बिल्डिंग है वो दैट इज टोटली ऑन द वेस्टर्न पार्ट. रेस्ट जो महाराष्ट्र है और जो थोड़ा बहुत जो नॉर्थ का है, ये ऑल वी आर कंपेयरिंग विद द OEMs. और जो साउथ में जो आपको मेजर दिखता है, वी हैव रिसेंटली टाइड अप केरला में, हमने केरला गवर्नमेंट के साथ KMSCL के साथ हमने टाइप किया है, बीइंग वन ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई फॉर ऑन्कोलॉजी ड्रग फॉर देयर करोनिया स्कीम्स, वेयर जहाँ पे वो पेशेंट्स को MRP लेस 60-70% पे ड्रग्स देते हैं. Then our competitive, these are our major clients in OEMs: Kedla, Torrent, RPG, Juventus, Phoenicia, Knoll, Hetero, Intas, Biochem. We've recently added Glenmark, Alchem, and Zydus also. Then Mcure is also trying to get product manufactured by us. Indigo Remedies is also launching. And there are many other, like some with a market cap of around 1,500 crore, which who are getting their product manufactured from us. So overall, we've got a key strength, we got a key clients, and we are doing our competitive strength are like we got a tax holiday till 2019-20. But as on today, the tax holiday is in terms of excise duty is not there, since the product plant, every plant has come under the GST. So the tax holiday hasn't made any impact on us. The reason is how much input we are getting 18% and output we are giving 12%. So the total amount of GST which we were earlier were not doing, but now we are started doing, is not a very big amount which would affect our PAT or something. So the another our competitive strength is that we have gone into the backward integration. Last year what happened was, we, in the terms of increasing our sales, we didn't get a raw material in time. So there are very less number of players who are manufacturing this raw material, this API in India for oncology drugs. So what we thought is like, let's just, to overcome all this thing, let's just have our own API manufacturing facility. So we have recently come up with our own API facility. The production has just started like 2 months back, and for there we have started manufacturing 11 products in API, to which is only for our captive consumption, and we are supplying to beta drugs. Then experience is all about to make the industry grow, and our promoter, Mr. Vijay Batra, my father, he has an experience of more than 35 years. He's doing this pharma thing from last so many years. He's been chairman of the pharmaceutical industry in our city. So all this thing has an expertise where he can teach all the chemists also how to maintain the batches, how to balance them and all. Our driving long-term growth is something we are looking for, as I totally discussed with you, that our core strength and our focus is to increase exports. We have to make our benchmark and make our presence mainly in the regulated and semi-regulated markets. Africa will be starting this year only, and our aim is to go towards CIS countries, our European countries, and South America and Southeast Asia. Then even domestic also, we want to have a big presence in domestic market by being a leader of manufacturing of the oncology drugs. What we are thinking that we should have some technology products where we have just tied up with, that's in the process, so then it cannot be disclosed. But there's technology which we are planning to come up in India, which no one is having. जिसके पास काफी कम लोगों के पास बोला टेक्नोलॉजी, लाइक इंडिया में होगा ही नहीं उन प्रोडक्ट्स का टेक्नोलॉजी. सो हम लोग फर्स्ट होंगे जो वैसा प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी लेके आके वो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में हम प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे. सो अब मेन टारगेट जो हमारा इस साल का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि हमें EU GMP सर्टिफिकेशन लेके
MHRA लेके हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट की तरफ रेवेन्यू हमारा ग्रोथ करा के next year should contribute, our export revenue should contribute 15 to 20%, and by 2019-20 it should contribute around 35 to 50%. This is what target is. So balance sheet, ये Mr. Gupta will discuss around for the financials. बैलेंस शीट में व्हाट यू वांट? बस just a discussion. Slides आपने बस बताना. गुप्ता जी, बैलेंस शीट में आप बेसिकली जस्ट थोड़ा गो थ्रू करवा लीजिए, अगर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बैलेंस शीट में यही है कि जो सेल्स है इनकी, दैट वाज लास्ट ईयर इट वाज 41.93 crore and the PAT was 5.17, and the results in 31st March 2017 में जो क्लोज हुआ था, द जो फ्री रिजर्व थे दैट वाज 6.37 crore, और जो उनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी दैट वाज ओनली 3.76 एंड द शॉर्ट टर्म बोरिंग वाज 3.75 ओनली अगेंस्ट द जो टोटल फिक्स सेट्स एज ऑन डेट 31st March वाज 8 crores, अराउंड 8 crores। और जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं जो अगले साल की हैं दैट वाज अराउंड 54 to 55 crore विद ए पैट मार्जिन ऑफ रफली 6.5 crore, and 2018-19 में we are expecting a sale of around 65 crore and with a PAT margin of around 8.7. The main जो actual profit आएगा that was in 1920, जिसका कि जो यह IPO आ रहा है जो उसकी प्रोसीड से जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी और जो सारा इफेक्ट आएगा that was in 1920, that will be around 100 crore and with a PAT of around 18-20 crore. ओके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कंपनी में दैट वाज इंटरेस्ट कॉस्ट वाज जस्ट जीरो। राइट नाउ द इंटरेस्ट कॉस्ट इन करंट बैलेंस शीट वाज ओनली 2%, दैट वाज अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 42, इट वाज ओनली 82 लाख इंटरेस्ट वी हैव बुक्ड। ओके। या और गुप्ता जी, आप अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप कुछ बैलेंस शीट की चीजें अगर शेयर करना चाहते हैं, अगर जो इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो। फार्मा में होता है कि जो जो मैं देख रहा हूँ हर इंडस्ट्री में जो डूबती है वो या स्टकअप होती है, दैट वाज ओनली ड्यू टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट वाज मोर ऑन द कंपनीज राइट नाउ इन इंडिया। और जो इनकी खूबी है इस कंपनी में वो यही है कि भी जो इंटरेस्ट है दे वांट टू कीप द लोन ऑफ द बैंक्स इवन फॉर द वर्किंग कैपिटल is very very low right now। जो आज के दिन में होएगा as on date it was term loan is only 1.8 crore and the working capital loan is around 4 crore। ओके ओके। that was the जो मैं समझता हूँ सबसे जो अच्छी चीज वो है। और जो सेल्स है सेल्स के ऊपर जो टोटली इनका जो एक्सपोजर है मतलब जो फोकस है that was more on their own brand and export, जिसके लिए पूरा इनका जो टीम काम कर रही है वो सिर्फ इसी के लिए काम कर रही है कि सो दैट की जो पैट मार्जिन है दैट विल इंप्रूव। बिकॉज जो बीटा मार्जिन है जो कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं जो उनके जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनको देते हैं उसमें जो बीटा आता है रफली इट वाज वी कैन से कि 10 to 12% एंड जो अपना है दैट विल कंट्रीब्यूट टू अराउंड 30 to 35%। सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो हम अपना जो अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने ऑन ब्रांड की एक्सपोर्ट और लोकल जो सेल है उससे क्या है कि जो बीटा मार्जिन है दैट विल इंक्रीज और उससे जो इन क्यूमुलेटिव द पैट मार्जिन विल इंक्रीज टू रफली 20% फ्रॉम करेंट अराउंड 12%। ओके गुप्ता जी, हमारे एक इन्वेस्टर है, उनका सवाल है कि जो हमारा अभी पार्ट मार्जिन है जो भी सो आई थिंक 11-12% है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको इंक्रीज करने के लिए, या हमारा ये जो पार्ट मार्जिन है उसको बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज है? अगर है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आगे जाके? जो वही तो बताया ना आपको, जो हमारी मेन फोकस है पैट मार्जिन बढ़ाने का वो अपनी ओन सेल है टू द लोकल मार्केट एंड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। क्योंकि एक्सपोर्ट के जितने भी इनके यूजीएमपी के जो लाइसेंसेस हैं जो सैंक्शंस हैं वो आएंगी रफली 2018 एंड में आई थिंक
बिल्कुल 2018-20 दिसंबर तक वी विल बी गेटिंग EU GMP सर्टिफिकेशन। उससे क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यूरोप और ये जितनी मार्केट है आपकी सीरिया वगैरह, ये नॉन रेगुलेटेड, और ये जो आपकी साउथ अमेरिका की मार्केट है, इसके अंदर इफ यू गेट, यहाँ पे कोई आपको 10-20 लाख का ऑर्डर नहीं मिलता, यू गेट टू गेट ऑर्डर्स ऑफ बल्क ऑर्डर्स, मतलब जहाँ पे शिपमेंट जाती है सीधा ये 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, और उसके अंदर से जो रेट्स है जो इंडिया में, दे गिव यू 10 टाइम मोर रेट्स देन इंडिया। सो एंड द बेस्ट पार्ट इज पेमेंट जो इसकी एक्सपोर्ट की आती है, दैट इज टोटली ऑन LC और टोटली एडवांस, मतलब 100% एडवांस आता है या 100% LC आता है, जिसको हमारा बैंकर अप्रूव करता है। So this is how we have started. This is the reason like the PAT will increase and we are expecting जो PAT जो अगर 11% आता है हमारा, आ रहा है जो आज की डेट में, we are expecting around 16 से 17% तक PAT पहुंच जाएगा। ओके, और ये एक्सपोर्ट आपने जो बोला वो कब तक शुरू होगा? 2020 तक we are expecting कि हमारा EU GMP सर्टिफिकेशन आना चाहिए, एंड बाय 2000 अभी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है हमने इस साल से। We have started supplying to Venezuela. We have already got the orders for Kenya. We have already got the orders for Franco-African countries. हमने थोड़ा होता एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, जो इस साल में हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू दिखेगा आपको 4-5% के आसपास एक्सपोर्ट रेवेन्यू दिखेगा। एंड जो मेजर एक्सपोर्ट है जो आपके एबिटा को इंक्रीज करेगा, जो पैट को इंक्रीज करेगा, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू 19, मतलब आप समझ लीजिए मार्च तक हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो 2019-20 में will be supplying to good country where ये PAT margin will substantially will increase to certain 16-17%. ओके, सो तब तक हम समझ सकते हैं कि ये 11% के आसपास ही रहेगा जब तक एक्सपोर्ट शुरू नहीं होगा। नहीं, ऐसे है जैसे राहुल जी ने पहले बोला था, देयर आर 3 or 4 मोर प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी जिसकी इंस्पेक्शन की हो चुकी है लास्ट वीक में, वो ऑलरेडी सैंक्शन, मतलब उसका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट। हमने उसको अपने इसमें नाइदर हमने उसको सेल्स में लिया है, नाइदर हमने उसका इफेक्ट नीचे बॉटम लाइन में लिया है। दैट विल बी अराउंड लेट अस से नेक्स्ट ईयर से सेल रफली 10 से 12 करोड़ की एडिशनल सेल हो जाएगी, और जो पैक जो हमने 6.25 करोड़ लिया है, दैट विल बी इंक्रीज बाय रफली 2 से 2.25 करोड़ पे, वो एडिशनल हो जाएगा। उसका हमने इफेक्ट नहीं लिया था बिकॉज जिस तरह हमने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाई थी उस तरह हमारा वो इंस्पेक्शन हुआ नहीं था प्लांट का। ओके ओके, वो अब हो चुका है, और इन द शॉर्ट पीरियड द प्रोडक्शन विल बी ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा उसका। ओके, बट जो राहुल जी ने जो बताया कि हमारे एक इन्वेस्टर का कंसर्न है कि राहुल जी ने बताया कि 2019-20 में जीएमपी जो भी अप्रूवल आएगा, 18 क्या रिस्क है? हाँ, क्या रिस्क है कि अगर वो डिले भी हो सकता है, उसके क्या चांसेस है? सर देखो, रिस्क तो मतलब ऐसा पूरा इंडस्ट्री रिस्क पे चलता है। अगर वो होता भी है तो वी हैव सेमी रेगुलेटेड मार्केट ना, अकेला यूरोप मार्केट नहीं है प्रदीप जी। तो हमारे पास उसके जो हमने उसका बैकएंड जो तैयार किया है, जो बैक में तैयार किया है, वो ये है कि हम साउथ अफ्रीका पहले करा लेंगे, हम कोलंबिया पहले करा लेंगे, हम लोग फिलीपींस और इधर साउथ ईस्ट एशिया पहले करा लेंगे, और हम CIS कंट्रीज पहले पकड़ लेंगे। ये हमारा टारगेट है कि EU GMP भले ही 1 साल डिले हो जाए, लेकिन ये कंट्रीज हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करें, और ये भी आपका पैट मार्जिन कम से कम 6 से 6 to 7% इंक्रीज कर देंगे। ओके ओके, तो वी ऑलरेडी डन विद, हमने प्री इंस्पेक्शन ऑलरेडी साउथ अफ्रीका और कोलंबिया का करा लिया है टू सी वेयर आवर कंप्लायंस स्टैंड। हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट्स और टाई अप चल रहा है उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, वेयर आई विल बी फ्लाइंग आइदर दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ टू उज्बेक टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट, जहां पे उन्होंने इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां फाइनल किया है उसको ऑन्कोलॉजी ड्रग सप्लाई करने के लिए। ओके, उसके बाद ऐसा है कि मतलब ऐसे करते करते बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम सेमी रेगुलेटेड, जहाँ पे इवेंचुअली इतना EU GMP का रोल नहीं आएगा, बट अगर EU GMP आता है तो आपका एक्सपोजर एकदम बहुत सारी कंट्रीज में खुल जाता है। ओके, तो दैट इज द रीजन हम EU GMP की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज पैट हमारा नई टेक्नोलॉजी से भी इंक्रीज होता है, जो भी हमने ह्यूमन एल्बुमिन पेक्टिडेक्सेल बनाया है उस प्रोडक्ट से ही आपको इटसेल्फ यू विल सी द रेवेन्यूज, वंस द रेवेन्यूज विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, आपको उसी से पैट इंक्रीज का फिगर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा बैलेंस शीट में, उसकी रिफ्लेक्शन। ओके ओके, सो ये अनरेगुलेटेड मार्केट में जैसे आपने बताया, वहां पे भी कंपटीशन रहेगा हमारे साथ या? देखो, इंडिया जो है वो जेनरिक ड्रग का मेजर सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में। ओके ओके, तो उसमें क्या है कि अभी भी किसी लोगों का फोकस ऑन्कोलॉजी ड्रग में नहीं गया, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है। ओके, तो आज की डेट में टोटल 24 to 25 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो एंटी कैंसर प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, इंडिया में उसमें से 15 कंपनीज आप ऐसे निकाल दो, जो जैसे सन फार्मा हो गया, आपका जाइडस हो गया,
जो सिर्फ इम्टास हो गया, जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, अपना सिप्ला हो गया। तो ये अब इनका हर कंट्री में अपना टीम होता है। डॉक्टर रेड्डीज हो गया, नेटको हो गया, इनका हर कंट्री में अपना टीम रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा उनके साथ कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन बाकी की कंपनीज जो हैं वो इतनी रेगुलेटेड नहीं है, इतने स्टैंड तक नहीं पहुंच पाई हैं कि हम उनके साथ कोई compete करें। सो ये वही है जो पहले स्टेप ले जाएगा, पहले आके रजिस्टर कर जाएगा, पहले उस मार्केट को कैप्चर कर लेगा, वही है। बाकी रही बात कंपटीशन की, अगर आपके पास नया प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी का, और अगर आपके प्रोडक्ट बास्केट में कम से कम 50-70 प्रोडक्ट्स ऑन्कोलॉजी के हैं, देन ऑलवेज यू हैव एन एज इन द इंडस्ट्री। ओके ओके ओके। और राहुल जी, आप को हमारे एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, जब भी मान लो कि अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट बड़ा होता है, तो एज अ बीटा ड्रग्स हमारी कंपनी का क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा कि हम यही मार्जिन को हम कंटिन्यू रख पाएंगे आगे जाके, या इससे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल है सर। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कंपेटिटिव एडवांटेज हमारे इसके अंदर बेसिकली ऐसे रहता है कि अभी हम एक नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी, जो हम पैट मार्जिन को और इंक्रीज करेंगे। देन आवर विजन फ्रॉम 2022-23 इज ओनली टू गो विद द बायोसिमिलर, जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना है, बायोसिमिलर बनाना है। तो रादर इतना मार्जिन नहीं रहेगा इनके अंदर, ये मार्जिन पैट मार्जिन और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और इवन एक्सपोर्ट से भी ज्यादा इंक्रीज होगा जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द विजन बिहाइंड ये हमारा टोटल 5-1 साल का 7 साल का जो हमारा प्लान है, दैट इज आई जस्ट डिस्कस इन ब्रीफ। सो margin wise we are not considering any risk factor because we have the technology। हमारे पास नया टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट बनाने का, हमारा F&D टीम बहुत स्ट्रांग है, हमारा टेक्नोक्रेट्स बहुत स्ट्रांग है, एंड जो हम नया RTU ला रहे हैं, रेडी टू यूज ला रहे हैं, उससे भी मार्जिन वगैरह को और ज्यादा पुशअप मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बर्डन कोई है ही नहीं ऊपर इंटरेस्ट का, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का एडिशनल कोई हमने करना नहीं अभी। तो इसलिए जो कॉस्ट शीट है, जितनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स ओवरहेड है, टुवर्ड द सैलरी, और तो वही होएगी, बाकी सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके ओके। आप जब ऑलरेडी ब्रेक इवन के बाद आपको पता ही है, जितना भी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स ओवरहेड होगा, दैट इज ऐड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ओके, यस, इंटरेस्टिंग। तो गुप्ता जी, आप इस पे भी थोड़ा ध्यान अगर शेयर कर सकते हैं कुछ फाइनेंशियल, कि अगर हमारा टर्नओवर बढ़ता है तो हमारे क्या एक्सपेंसेस, हाँ, हमें कोई एडवांटेज है कि टर्नओवर अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारा पार्ट ऑलरेडी इंक्रीज होगा? एक्सपेंसेस तो सिर्फ जस्ट जो थोड़ा बहुत अगर सैलरी में बढ़ेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट में कुछ भी नहीं बढ़ेगा इनका, क्योंकि इंटरेस्ट तो सारा ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट ईयर तक सारा मतलब मस्त तक पे हो जाएगा। सिर्फ ओनली वर्किंग कैपिटल जो थोड़ा बहुत चाहिए होगा मार्केट के लिए, मार्केटिंग करने के, दैट इज ओनली वी रिक्वायर्ड, और दैट इज दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन द टेकिंग द वर्किंग कैपिटल लोन आल्सो राइट नाउ। तो इनका पूरा प्लानिंग होता है कि भी जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और जो उसका जो क्रेडिट लेना है मार्केट से और जो सेल करना है, उसमें दे ऑलवेज कीप्स वेरी गुड, मतलब कि मार्जिन वी कैन से, और जो अपना जो पैसा लगना है मतलब वर्किंग कैपिटल में, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री। इफ यू कंपेयर विद एनी फार्मा इंडस्ट्री, आवर कंपनी इट इज द लोएस्ट। इवन इन चंडीगढ़ कोई भी इंडस्ट्री उठा लो फार्मा की, उनमें सबसे बड़ा जो लकुना है दैट वाज द इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली। ओके ओके ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। और रिसीवेबल डेज कितने होंगे अपने अभी? हाँ जी, रिसीवेबल डेज एवरेज कितने होंगे? roughly around 70 to 60 days roughly, और 60 लोअर एंड है और 70 इज हायर एंड। ओके, इसको क्या कम करने की गुंजाइश है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर? बोलिए सर। ऐसा है, देखो, कोशिश तो पूरा रहेगा कि हम 60 को 45 डेज पे लेके आए, बट बेसिकली जो आपके OEMs होते हैं वो आपको पेमेंट अपने हिसाब से देते हैं, 60 to 75 डेज में देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अपनी मार्केटिंग में हमारा अभी जो है दैट इज 45 डेज, उसको हम रिड्यूस करके कुछ स्टार्ट करेंगे, दैट यू विल डू व्हेन वी इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली विद द एक्सपोर्ट, क्योंकि उसमें हमारे को एडवांस पेमेंट आती है और इट वाज अगेंस्ट एलसी, तो जो एवरेज है तो ट्रेड पेबल्स विल बी रिड्यूस्ड। ओके ओके, तो रिसीवेबल डेज अभी कम होने की गुंजाइश नहीं है इन द नियर फ्यूचर? राइट नाउ, बट जो भी अगला 1-2 साल है उसमें तो वी कैन से कम है,
बट उसके बाद जो थर्ड ईयर है उसमें काफी अच्छी हो जाएगी। ऐसा है प्रतीक जी, अभी फार्मा का जो जनरल ट्रेंड देखेंगे ना, लोगों को 120 140 दिन में पेमेंट आता है, 150 दिन में। हमारा फिर भी 60 to 75 डेज पे हमने मेंटेन करके रखा है। एंड जो अपने है दैट इज 45 डेज। हम 45 to 50 डेज पे जाते हैं, 50 डेज से ऊपर बियॉन्ड किसी को जाने नहीं देते। एंड एक्सपोर्ट में हम टोटल एडवांस लेते हैं। सो रिसीवेबल्स आर वेल इन कंट्रोल, और जो पेबल्स है दैट इज अंडर 100 to 120 डेज। Okay, okay. So this cycle we are maintaining every year, and that's why अगर आपने हमारा working capital देखा होगा, we have only working capital utilization of 3.5 crores। जो जनरल फार्मा कंपनी देखोगे, अगर कोई 42 का टॉप लाइन करेगा तो उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहता है, वो उसका यूज रहता है 15 करोड़ के आसपास का। ओके, और अपना कितना वर्किंग कैपिटल यूज हो रहा है अभी? 3.78। ओके, इंटरेस्टिंग। सो पूरा अंडर कंट्रोल है एज अकॉर्डिंग टू यू, यस, कंपेयर टू अदर कंपनीज। बहुत बड़ा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रतीक जी, जो क्या होता है मैनेजमेंट में, इनके जैसे दोनों भाई हैं, वन इज राहुल एंड अदर इज अपना वरुण, दे लुक आफ्टर ऑल द डेटर्स देमसेल्फ। उसमें क्या क्या होता है, एम्प्लॉइज क्या होता है कैजुअल हो जाते हैं, बट जब व्हेन द ओनर्स वर्क्स इन द सीट, दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड आस्किंग द देयर मैनेजमेंट, दे आर ऑल सीनियर एम्प्लॉइज की भी इसका पैसा क्यों नहीं आया। तो कंट्रोल और पूरी इनकी एमआई सिस्टम अच्छा है। दे ऑलवेज चेक्स एवरीथिंग रेगुलरली, एवरी वीकली दे हैव ए मीटिंग्स विद देयर ऑल द स्टाफ्स रिगार्डिंग ऑल प्रोडक्शन, क्या वेस्टेज है, क्या मतलब पेमेंट्स टाइम पे आ रही है, नहीं आ रही है, रॉ मटेरियल परचेज प्रॉपर्ली आ रहा है, उसकी पेमेंट्स टाइम पे जा रही हैं। दे ऑलवेज कीप्स कंट्रोल ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज वेरी गुड फॉर द मैनेजमेंट एंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, राहुल जी, हमारे एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि फार्मा में काफी सारा ह्यूमन जैसे कि एम्प्लॉइज पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करेगी। सो अपना एवरेज एम्प्लॉय का एज कितना होगा कंपनी में, जैसे कि कितने साल से वो लोग? हाँ सर, हमारी कंपनी में जो मार्केटिंग में है, द एवरेज इट इज 40 इयर्स, 40 to 45 इयर्स। ओके, एंड वो कितने साल से, एवरेज कितने साल से कंपनी में होंगे सब लोग? सर, हमारे पास यही तो ब्यूटी है इस कंपनी का कि हमारे पास जो भी आदमी है वो 30 साल से जुड़ा हुआ हमारे साथ, 35 साल से। ओके ओके। सर, हमारा जो सेल्स में, फार्मा सेल्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसके अंदर क्या रहता है, हर आदमी को, जैसे आप कोई ग्लेनमा काम करता है, किसी में भी काम करता है, तो उसको कुछ भी, किसी भी कंपनी काम करेगा, उसको कहीं से भी 20,000 का या 2 लाख का इंक्रीमेंट मिलेगा तो भाग जाता है। हमारी सेल्स टीम एक ऐसी है जो 9 साल से हमारे साथ ही स्टिक्ड है, और एक एक आदमी 20-20 हजार के पैकेज से शुरू हुआ था। जो आज मेरा एनएसएम है, उसका मैं 2 लाख का पैकेज पे लेके आया था, आज उसका पैकेज 20 लाख का है। Okay. So this is how everyone is associated with the company. They are truly dedicated, और टोटल हम ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा मिस्टर बलवन, जो आपने देखा, एक डायरेक्टर हैं बीटा ड्रग्स में, ही इज एसोसिएटेड विद अस सिंस लास्ट 25 इयर्स नाउ। ओके, ऐसे अगर आप हमारे प्लांट में आएंगे तो जितने आदमी देखेंगे, मतलब हम उनको बहुत यंग लेके आए थे, आज दे आर मैच्योर्ड इनफ, और 45-50 उनकी एज है, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, और वो तब से एसोसिएटेड है कंपनी के साथ। Okay. Retainment is not an issue with us. We take utmost priority in retaining people. Okay. सर, इसमें ऑफर स्ट्रक्चर में गलती है, मिसप्रिंट हुआ है। ये जो मार्केट मेकअप पोर्शन है, दिस इज 1,29,600, नॉट 6,000। ओके, हाँ, वो आपने मुझे बताया था, ये प्रेजेंटेशन में गलती हुआ है वहाँ पे। ठीक है। सो राहुल जी, आई थिंक मोस्टली इन्वेस्टर के कंसर्न्स आपने बता दिए, एंड अगर कुछ भी इसके बाद भी कंसर्न रहेंगे तो वी विल मेल यू। श्योर सर, विल वेट फॉर इट। और बेस्ट विशेस फॉर द आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कोई डेट अनाउंस? 29 होगी सर, अनाउंस पेपर में आ चुका है सर, पब्लिश हो चुका है। ओके, 29 को हो रहा है अपना। इंग्लिश स्टैंडर्ड में इट वाज पब्लिश्ड ऑन आई थिंक फ्राइडे। ओके। कल से सीएनबीसी पे विल हैव एन एडवर्टाइजमेंट आल्सो, एंड 29th इज द ओपनिंग डेट। 29th, 3rd, 4th 3 दिन ओपन रहेगा। ओके, एंड 11th, 12th वी आर प्लानिंग टू लिस्ट। ओके। सो बेस्ट विशेस टू राहुल जी, एंड बीटा ड्रग्स का आईपीओ सुपर सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू प्रतीक। वी विश, एंड इन्वेस्टर्स को आपने काफी सारी क्वेरीज थी, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट अ सैटिस्फैक्शनरी आंसर्स, और अगर फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वी विल डेफिनेटली कम टू यू। थैंक यू राहुल जी, एंड थैंक यू गुप्ता जी फॉर शेयरिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सर।
Thank you. Lovely. Bye. Take care. Okay, bye. Take care.